सो फ्रेंड्स, मार्जिनल कॉस्टिंग का ये सेकंड क्लास है। मैंने पहला क्लास में बता दिया व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट एंड व्हाट आर फीचर्स ऑफ मार्जिनल costing. And today class I am covering about the what is the marginal cost and techniques of marginal costing and some aspect of limitation of marginal costing. So मैंने जो पहला इक्वेशन आपको बताया था, योर बेसिक इक्वेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ये एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। फिर आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग क्या क्या होता है। सो मार्जिनल कॉस्ट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कोई एक यूनिट बनाते हैं, अगर थोड़ा सा और एडिशनल यूनिट बनाते हैं तो व्हाट विल बी द कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, थोड़ा सा भी बढ़ा थोड़ा सा भी घटा, तो व्हाट एवर द कॉस्ट इनकर्ड दैट इज कॉल्ड योर मार्जिनल कॉस्ट. So marginal cost can be defined the amount of given volume output which is aggregate cost or are change with the volume of output increase or decrease of one unit. मतलब टोटल थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा, एक यूनिट भी बढ़ेगा घमेगा, तो जो भी डिफरेंशियल कॉस्ट है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. Marginal cost is the additional cost of manufacturing of one additional unit, which is nothing else but the variable cost per unit. Marginal cost को बोलते हैं variable cost per unit also. And per unit of variable cost remains same as per given of activity. मैंने आपको फीचर पहले बताया था, variable cost जो होता है vary with the production, but per unit क्या होता है, फिक्स होता है. But fixed cost क्या होता है, it is fixed for the period, but it will vary with the productions. नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जो है सेग्रीगेट करते हैं. अगर जो भी कॉस्ट में टोटल कॉस्ट में अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो आप उसको सेग्रीगेट करते हैं, फिक्स कितना वेरिएबल कितना. सो देयर आर 4 मेथड, दैट इज 2 पॉइंट मेथड, रेंज मेथड, स्कैटर डायग्राम एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड. सो दीज आर द 4 मेथड ऑफ टेक्निक वेयर marginal cost can be determined or calculated or segregated. Then value of marginal costing to the management. What is the main purpose of marginal costing or helpful for the management? So it integrate the other aspect of management accounting. So marginal cost also consider the various aspect of the management. जैसे हो गया बहुत अदर मेथड ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है, जैसे स्टैंडर्ड और बजट है. Similarly, marginal costing is the one of the aspect of manager for decision making. So management can easily assign to the cost to the product. Marginal cost is assigned to the particular cost of the product. I emphasize on the significance the key factors. So key factors को ये emphasis देता है. The impact of the fixed cost on profit is emphasis. The impact of fixed cost on profit is emphasized or given thrust. Profit for the period is not affected. Profit for the period is not affected by change in the observation of the fixed expenses. क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है तो हम लोग कंट्रीब्यूशन को डिसीजन लेके लेते हैं, तो इसीलिए जो है प्रॉफिटेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं. देन there is a close relationship between variable cost and controllable cost classification, and it assists the provision of relevant cost for decision making. So marginal cost can be considered for decision making. These are the some of the valuable marginal cost to the management. Next is limitation of marginal costing. Marginal costing क्या क्या limitation है, demerit है. So segregation of the total cost into fixed and variable cost is a difficult task. मीन्स मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट को खाली लेते हैं तो समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट व्हाइल टेकिंग डिसीजन मेकिंग. देन सेकंड इज व्हाट, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग द फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट आर फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. ओनली variable cost is considered and fixed cost is not considered for the decision making, but fixed costs also have relevance for taking the decision making. Then in the age increasing in the automation or technological development, component of fixed cost is overall cost structure be resizable. मतलब अभी तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है
तो क्या फिक्स कॉस्ट को भी लेना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। हम लोग खाली वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, तो दैट मे नॉट बी द करेक्ट अप्रोच। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक डज नॉट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड फॉर इक्विवेलेंट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए मैनेजमेंट कॉस्टिंग ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देता। जस्ट लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए एम्फेसिस करता है। देन fixation of selling price of marginal cost basis may useful for short term only. So marginal costing is generally used for the short term decision making, not for the long term decision making. Then last is marginal costing can be used for assessment of profitability is only for short run. So कोई भी product का profitability निकालेंगे, so generally it is used for the short run, not for the long run. So these are the some of the disadvantages of marginal costing. 6 disadvantages of marginal costing. So this is all about the advantages and disadvantages of marginal costing. Then CVP analysis. CVP analysis. So what is CV? Cost volume profit analysis. This is what called cost volume profit analysis. So this is the relationship between profit and your volume or sales. So this is the relation between the profit and your sales. The intention of every organization to earn a profit or maximization of profit. So every business organization main motive is to earn profit. Sales minus your cost is your profit. So maximum profit. So CVP analysis is also known as relationship between the study among the following factors. जैसे हो गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड टोटल सेल्स अमाउंट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड टोटल सेल्स अमाउंट। आपको अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा तो टोटल सेल्स अमाउंट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट के में भी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ सेल्स। सेल्स बढ़ जाएगा वॉल्यूम तो आपको क्या कॉस्ट भी प्रॉफिट भी चेंज हो सकता है। सो दिस इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। जैसे आप 100 यूनिट बना रहे हैं इंटू 10 रुपया रेट है तो आपको सेल्स कितना हुआ 100, ठीक है। दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज रेट, दिस इज रुपीज। अगर ये बढ़ जाएगा आपका 100 के जगह 200 हो जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा आपका ये भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज अबाउट द selling price per unit will be changed if and sell volume also be changed if they change in the rate. Then relationship with the cost and profit volume ratio. Cost and profit volume ratio का क्या relation है? The management accounting is very important for finding out the lower cost or profit is vary with the relation with the change in the volume. अगर सेल्स बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो कॉस्ट पे वो अंतर आएगा। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सोल्ड आर सर्टेन एजम्पशन रिलेशनशिप विद द फंडामेंटल लीनियर। द मेथड कैन बी एक्सप्लेन विद द ग्राफिकल एनालिसिस ऑल्सो। तो हम लोग देखेंगे सीवीपी एनालिसिस जब देखेंगे तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। देन रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या एजम्पशन है? फॉलोइंग आता है एजम्पशन फॉर लीनियर रिलेशनशिप। तो कॉस्ट एंड प्रॉफिट का क्या है? लीनियर रिलेशनशिप है। मीन्स कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कॉस्ट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। देन एवरी कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड फॉर फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सो कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। देन सेलिंग प्राइस कैन बी रिमेन द सेम। मेन क्या है? सेलिंग प्राइस कांस्टेंट होगा। देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में जल्दी ओनली वन प्रोडक्ट। इफ मोर देन वन प्रोडक्ट विल बी देयर दैट इज प्रोडक्ट मिक्स इज एज्यूम टू बी सेम। ये हो गया आपका नॉर्मल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुत सारे फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्टिंग में। सो वी आर गोइंग टू सी द इन अ नेक्स्ट क्लास।